Good morning. So, on behalf of Kautilya Institute of Integrated Science, let me welcome all of you. Okay. So, this is our first JEE class, JEE Mathematics class. Okay. So, in this class, okay, we'll discuss the basics. We'll discuss the basics of mathematics and some part of the quadratic equation that will start. Okay. So, before going into the depth of the subject, let me welcome. All the students. Okay. Let me introduce myself. My name is Vikas Chandra Raut. Okay. Since last 7 years, I've been teaching mathematics to JEE students. Okay. And since last 3 years, I'm a part of the Kautilya Institute of Integrated Science. Okay. And generally, I only take your JEE classes. I never take your board classes. Okay. So let us start them. So these are the COVID guidelines. So you have to follow these protocols. Okay. Now there's an announcement. Okay. There's a mock test 21st of May 2021, and second test is on 23rd of March 2021. Okay. And you have to appear both the tests. Okay. And if you have any query, then you can contact the number given to you. Okay. So now we'll start. Okay. So since this is the introduction class, okay, we'll give some basics and we'll discuss some of the basics of the mathematics and as well as the subject is chapter is called quadratic equation. Okay. Now, what are the things required for a student to appear in the JEE Main exam? Okay. Number one, you have to remember the tables from 1 to 25. Okay. Next, you have to remember the squares from 1 to 32. For example, if I ask you the square of 32, the answer will be 1024. 1024. Okay. Next, number 3, you have to remember the cubes also. Okay. 1 to around 11. Okay. Cubes you have to remember. Okay. And next, you have to remember number 4, you have to remember 2 to the power something कितना होगा and 3 to something कितना होगा up to जितना आप याद रख सकते हो. For example, अगर मैं आपको पूछूं कि 2 to the 1 equal to क्या होगा 2, then 2 equal to 4, then 8, then 16, then 32, then 64, then 128, 256, then 512. Very good. Then 1024. This is very good number. 2 to the 10 is 1024. That you have to remember. Okay. Next 2048. Next 5096. 4096. Then 8192. Then 16374. Then 32768. Then 65536. So you have to remember like this. Okay. So today we'll start the basics of quadratic equation. Okay. And this chapter is very much important for your JEE. Okay. Why? This chapter is important for JEE as well as board as well as for your future also. Okay. After when you do engineering, in that also quadratic also plays an important role. Okay. So let us start them. So these are our contents. Okay. So first we'll discuss solving quadratic equations by the square root property. Okay. And next we'll discuss solving quadratic equations by completing the square. Okay. Next we'll discuss solving quadratic equations by the quadratic formula. Next we'll discuss graphing quadratic equations in 2 variables. We'll draw some graphs. Okay. Next we'll discuss how to find the domains and ranges of the graphs. Okay. Let us start then. Okay. First we'll start solving quadratic equations by the square root property. वो क्या होता है देखते हैं फिर. ठीक है. अच्छा. सब इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि सपोज यहाँ पर लिखा है कि if b is a real number, suppose b is a real number, a is also a real number. Okay. अगर हमने कुछ इस तरह से लिखा कि a square equal to b, then how to find the value of a? Then we have to take square root of both sides. Means both the left hand side as well as right hand side. So you have to take the square root. Okay. Okay. Then if you take the square root, then we'll write like this: root over, then root over. Okay. Then what's the answer? Then we'll get the answer equal to a equal to what? Plus minus b. Plus minus root b, not b. Okay. It's not b. Clear? Clear? Yes, sir. So for example, एक example ले लेते हैं, छोटा सा example लेते हैं since it's a first class. So we'll discuss all the basics. Okay. Suppose मैंने लिखा यहाँ पर 5 square equal to 25. ये सही है? बिल्कुल भी सही है, आगे नहीं. तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि -5 का स्क्वायर इक्वल 25? जी हाँ, लिख सकता हूँ.
जी हाँ लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि 25 का रूट ओवर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू +-5, ये होगा आपका। ओके, एंड बोथ आर रियल नंबर्स। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया नहीं है, वो आगे की बात है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? एनी डाउट? नो सर। ओके देन, ओके, डाउट तो मुझे पूछ लेना फिर। ओके, सो लेट अस सॉल्व सम इक्वेशंस। ओके, अच्छा, तो इससे पहले जो हमने लिखा था कि √25 इक्वल टू +-5, दिस इज नॉट ए इक्वेशन, कि वो इक्वेशन में कुछ वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मतलब क्या है? जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, वो वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब है द वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वैल्यू कैन बी चेंज, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है। नेक्स्ट, सो द क्वेश्चन इज x² इक्वल टू 49। ओके, so how to solve this? So take the square root of both sides, take the square root of both sides. Okay, so if you take the square root of both sides, we'll get what? x² रूट ओवर इक्वल टू 49 रूट ओवर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस। So we'll get two values, okay, for this question, for this two answers for this question. One is +7 and another is -7. Since it is the power is 2, so we'll get two values, we'll get two values. Acha, so in this J classes, okay, we'll discuss the basics as well as the J main questions also. Okay, so be prepared for that. Okay, so we'll go slowly, we'll touch the J main level. Okay, next, so as you can say, the answer equal to +-7. So next equation is 2x² equal to 4. So if you divided 2, then answer equal to x² equal to 2. So if we solve this, that means you have to take the square root of both sides. So I'm directly writing the answer. So x equal to what? X equal to +-√2. Okay. So what is the value of √2? √2 equal to 1.414. Remember, the value of √2 equal to 1.414. You have to remember this value. Next, the value of √3. √3 equal to what? 1.732. You have to, very good. जिसमें आंसर का उससे वेरी गुड, आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर ये चीज आप याद रखोगे देन इट विल सेव योर टाइम इन जे एग्जाम। ओके, अगर नहीं रखोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ओके, नेक्स्ट प्लीज गिव मी द आंसर। व्हाट द वैल्यू ऑफ पाई? पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.141 ऐसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्सपोनेंशियल ई? किसी को याद है? 2.71। वेरी गुड, जिसने भी कहा है उससे वेरी गुड, 2.71। ओके, ये सब चीज आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व y-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। एक काम करो, अभी 1 मिनट के लिए आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद अगर मैं आंसर बताऊंगा। चलो ट्राई करो, जल्दी से करो। आप लोग पास 1 मिनट है, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड। हाँ बताओ, y क्या होगा? सर 5 और 1। 5 और 1, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो y-3 whole square equal to 4. Now take the square root of both sides. We'll get y-3 equal to +-2. Okay, so y के दो वैल्यू जाएंगे, एक आएगा यहाँ पर 2 + 3 और दूसरा क्या आएगा? y equal to -2 + 3. So y equal to 5 और y equal to 1. So we'll get two answers, y equal to 1 और 5। जिसने भी कहा है 1 और 5, वेरी गुड, आंसर यही से, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। y इक्वल टू 1 और 5। नेक्स्ट, विल डिस्कस द स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी। ओके, तो इससे पहले हमने देखा कि अगर हम ऐसा लिखते हैं ना कि x² इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, मान लो कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल a कुछ भी हो, दैट मींस द आंसर इक्वल टू x इक्वल टू ±√a। हमने ये चीज पढ़ा। नाउ व्हाट अबाउट द इक्वेशन इज लाइक दिस कि x² plus a equal to 0, that implies x² equal to -a. That means हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो? क्यों, कोई आप नंबर ले लो, सपोज दिस इज योर रियल एक्सिस, यू नो व्हाट इज रियल नंबर गाइस, यू नो व्हाट इज रियल नंबर? यस सर। ओके देन, ओके, अच्छा, रियल नंबर क्या है? थ्रू आउट द रियल एक्सिस आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो आपने कहा 2.3, दैट्स द रियल नंबर। अब मुझे कोई आप एग्जांपल दो, रियल नंबर का एग्जांपल दो, कुछ भी आंसर बता सकते हो मुझे। 1/2 नहीं 1/2 नहीं, 1.2 1/2 नहीं, उसे 1. मतलब 1.2 कह सकते हो कि 1.5 कह सकते हो कि 0.5 कह सकते हो, इस तरह से कहो, ठीक है, क्लियर? कुछ और एग्जांपल?
माइनस 1.5 दैट्स ऑल्सो रियल नंबर, जो कि कंप्लीट रियल एक्सिस में आएगा ना, वो आपका रियल नंबर है। ओके क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ कोई एक ऐसा नंबर बताओ रियल नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा, ऐसा कभी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? No, sir. इट्स इम्पॉसिबल, इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये जो इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो माइनस 4 लिखा है दिस इज नॉट ए रियल नंबर, और हमें ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर के नेगेटिव आएगा। हाँ और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, बट नाउ विल नॉट डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर, we are now are focusing only on the real numbers. Okay clear? So अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल कि x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, इसके भी कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। ओके देयर इज नो रियल सॉल्यूशन फॉर दिस, इसलिए हमने यहां पर लिखा है देयर इज नो रियल सॉल्यूशन बिकॉज़ द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 इज नॉट ए रियल नंबर। सो यहां पर आप लिख सकते हो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन प्रेजेंट बिकॉज़ द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 इज नॉट ए रियल नंबर। ओके हां कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, but now we'll not focus on the complex number. Okay next, okay we'll discuss some questions. Okay करते हैं उसे, इसका भी हम ले सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। so we'll get x plus 2 equal to plus minus 5, so x equal to 5 minus 2, x equal to minus 5 minus 2, so यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या है आपका आंसर, x equal to minus 7। so देखो अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, x plus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब पावर में क्या है, पावर में 2 है, तो पावर में 2 है इसलिए आपको दो आंसर्स मिलेंगे, चाहे आंसर दोनों अलग हो सकते हैं कि एक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको दो आंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ओके ये इसको सॉल्व करते हैं फिर 3x माइनस 17 का होल स्क्वायर 28, इसका भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, तो इसका आंसर क्या होगा 3x माइनस 17 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 28, तो रूट 28 मतलब क्या है 4 इंटू 7 इसका रूट ओवर, तो 4 का क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 7 इसका आंसर है। तो 3x इक्वल टू ओके 17 प्लस माइनस 2 रूट 7, 17 माइनस यहाँ पर है इधर चला जाएगा, इफ यू टेक द माइनस 17 टू राइट साइड इट विल बिकम पॉजिटिव, सो विल गेट x इक्वल टू 17 प्लस माइनस 2 रूट 7 बाय 3, so we are getting two values, one is 17 plus 2 root 7 by 3 and another one is 17 minus 2 root 7 by 3. Since it is the power is 2, we'll get two answers. Okay, two real answers. Okay, next. इसको कुछ डाउट है इसमें? Any doubt? No sir. ठीक है। No, sir. अगर डाउट, if you have any doubts, then you can you're free to ask me. Okay, you're free to ask me any kind of doubts. Okay, next, solving quadratic equations by completing the square, and this is very important. Why this is very important? Because in competitive exams this will help you. Okay, आप बीटेक करो चाहे बीटेक के बाद कुछ और भी पढ़ने के लिए कोशिश करो, आपको ये चीज चाहिए होगा, हाउ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। ओके देखते हैं फिर उसको, एक 3-4 पॉइंट्स लिखा गया है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप चाहो तो पॉइंट्स को याद रखो, याद ना रखो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखो उसे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्राइनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसको याद नहीं रखते हम लोग, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x दिया गया है, वी हैव टू मेक दिस एक्स स्क्वायर माइनस 10x ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर को पता है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड आल्सो यू नो दैट a माइनस b का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो हमने लिखा है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ये जो लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, हमें इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मेट है ना, इसी फॉर्मेट में उसको लाना है। तो कैसे लाना है ढंग से देख, तो यहाँ पर ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान से देखो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ x का होल स्क्वायर लिखा है, हम लिख देंगे x का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि ये a स्क्वायर हो गया आपका, देन क्या आपका इधर प्लस 2ab होगा, इधर माइनस 2ab होगा, यहाँ माइनस सिंबल दिया है हम माइनस लिखेंगे। हमें अभी क्या चाहिए 2ab चाहिए, तो पहले हमने 2 लिखा इंटू a, अभी a हमारा यहाँ क्या है x है, तो हमने यहाँ पर x लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको 2ab का फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 10x लिखा है,
अभी तक हमें 2x मिल चुका है, हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो 10x हो जाए, बताओ? 5। वेरी गुड, यहाँ हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी हमारा b आ चुका है, लेकिन हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2 भी लिखा है, तो हम +5 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? देखो +5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर दोनों को जब ऐड कर लोगे तो 0 हो गया, तो व्हेन यू ऐड 0 टू समथिंग सो इट विल नॉट अफेक्ट, तो आंसर विल इक्वल टू समथिंग। ओके, तो इसलिए हमने पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, x स्क्वायर माइनस 10x था, इसलिए देखो अभी क्या हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 10x, ये टोटल में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, हाँ कि नहीं? दैट मींस अगर आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल नॉट अफेक्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब बचा क्या, -5 का होल स्क्वायर। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। अब ये तुम्हारा ध्यान से देखो एक परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इससे पहले नहीं आ रहा था। अभी यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है तो देन यू आर फ्री टू आस्क मी, आई विल गिव यू ओनली 2 मिनट्स। सर और एक बार बोल दीजिए सर। हाँ मैं समझा दूँ, चलो मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा क्या है, x स्क्वायर माइनस 10x लिखा है, तो यहाँ पर x मतलब x का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर माइनस दिया है तो हमने माइनस सिंबल रखा, हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए हमें, ठीक है ना, तो हमने लिखा -2 इंटू एक्स, यहाँ पहले से x था तो हमने x को लिखा यहाँ पर, ठीक है ना, 2x हो गया। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो 10x हो जाए, बिकॉज 10x को हमें 2ab के फॉर्मेट में लिखना है, तो हमने देखा कि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10x होता है, ठीक है ना, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10x होता है, तो अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमारा हो गया b हो गया, तो अगर b हो गया तो हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे b स्क्वायर तो चाहिए, तो मैंने क्या किया, b स्क्वायर को ऐड कर दिया, क्योंकि चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लो, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लो, दोनों केस में आपको प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए मैंने +5 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, और जब मैंने इसको ऐड करूंगा तो जबरदस्ती तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ताकि ओवरऑल इसका कुछ इफेक्ट ना आए हमारे इक्वेशन के ऊपर, इसलिए मैंने -5 का होल स्क्वायर भी ऐड कर दिया, ताकि जब दोनों को ऐड कर लोगे तो 0 ओवरऑली ऐड होगा एंड इट विल नॉट अफेक्ट द आवर ओरिजिनल इक्वेशन। क्लियर? तो अभी हमारा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर हो गया, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, हमने इसको लिख दिया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और बचा क्या, -5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 आ गया हमारा, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ना बन चुका है हमारा। अभी किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी इरेज दिस। ओके चलो आप लोग ट्राई करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x, जल्दी से आंसर बताओ, क्विक, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, वही यू हैव टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। Sir, x minus 7. सर x minus 7 whole square minus 49. x माइनस 7 होल स्क्वायर minus x minus 7 whole square minus 49. किसी को कुछ डाउट है? 49. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? No sir. चलो ठीक है, अच्छा चलो फिर मैं सॉल्व, मान लो किसी का हुआ भी नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, अब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो 14x मुझे मिल जाए, इंटू 7 देन प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो इससे मुझे मिल जाएगा कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49। क्लियर? अच्छा अब एक काम करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली बेटा जेई के लिए क्वेश्चन मैं कम करूंगा, 30% क्वेश्चन अगर मैं करूंगा, 70% क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो। अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 14x, बताओ क्या आंसर होगा, क्विक जल्दी से बताओ। प्लस 7 होल स्क्वायर plus 7 whole square plus 49. सर x plus 7 whole square plus 49. x प्लस 7 का होल स्क्वायर Plus 49. प्लस 49। Yes sir. Minus 49 माइनस 40 बेटा तुम्हें यहाँ पर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ऐड करना है, ये प्लस Yes, वाला तो yes, स्क्वायर में आ गया, माइनस बचेगा, Yes. Yes. ठीक है, Yes sir, sorry sir. ठीक Yes sir. है, कोई बात नहीं, अभी मिस्टेक करो, कोई बात, अगर मिस्टेक करो तभी ना सीखोगे, ठीक है। चलो फिर तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब ध्यान से देखो, एक काम करो, आप लोग ही करो, मैं नहीं करूंगा। x minus 7 by 2 रो whole square x माइनस 7 by 2 होल स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस plus माइनस minus 49 by 4 minus 49 by 4। देखो तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे देन इट्स अप टू यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। और मेरा काम है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना,
एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया देन इजीली कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं फिर हम लोग। ओके, ये सब चीजें हमें नहीं, जो हमने क्वेश्चन देख लिया ना, बस इसको लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं उसे, थ्योरी लिखा गया है। ठीक है, चलो अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, क्या आप लोग इसे ट्राई करोगे 1 मिनट के लिए? यस सर। वेरी गुड, आप लोग ट्राई करो फिर मैं आंसर बताऊंगा। चलो ट्राई करो। y is equal to -4 और 2। y इक्वल टू -4 और 2। ये किसने बताया? व्हाट्स योर नेम बेटा? आकाश। आकाश, हाँ आकाश दिख रहा है। और किसी कुछ आंसर निकला? देखो जो लोग आंसर y नहीं बता इक्वल रहे टू हैं, -4 और -2 सर। -4 और -2। अच्छा देखते हैं फिर तुम्हारा कुछ और आंसर आ रहा है। Yes, sir. Y is equal to -4 and -2. -2 आकाश तुमने आंसर चेंज कर दिया फिर, -4 -2। चलो सर -4 2। -4 +2 किसने कहा ये सर आकाश। आकाश चलो -4 -2 किसने? सुमित ने कहा, किसने कहा था? सर हिमांशु। Yes, sir. हिमांशु ने कहा था। चलो ये सुमित, ये So हिमांशु। -4 -2. ठीक है, देखते हैं फिर। चलो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या y स्क्वायर प्लस 6 -8 लिखा गया है, तो मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। तो y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया हमने ताकि वो 2 फॉर्मेट में आ जाए। देन प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे एंड -3 का स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू क्या है बेटा? -8। नाउ दैट इम्प्लाइज y प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। So this is equal to y plus 3 का whole square -9 equal to -8. So that implies y plus 3 का whole square equal to +9 -8 equal to 1. So that implies if you take the square root of both sides, we will get y plus 3 equal to +-1. तो दो आंसर्स हैं, y equal to 1 -3 और y equal to -1 -3. So I'm okay, -1 -3. So that implies y equal to -2 और y equal to -4. तो -4 -2 किसने कहा था? हिमांशु ने कहा था। हिमांशु तुम्हारा आंसर बिल्कुल भी सही है। सुमित तुम हड़बड़ी में आंसर गलत बता दिए तुम। ठीक है, माइनस से तुमने प्लस बता दिया तुमने। ओके, Okay, sir. हड़बड़ी में आंसर मत बताओ, चाहे तुम आधा सेकंड ज्यादा लो लेकिन आंसर सही करो। ठीक है, एनी डाउट? नो सर, नो सर। नो सर। चलो चलो अब ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो जल्दी से ट्राई करो इसे, मैं नहीं करूंगा इसे, आप लोग सॉल्व करना है। क्विक, पहले आप लोग करो उसके बाद मैं करूंगा। एंड यू हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया हिमांशु, सुमित? तो जो लोग आंसर बताएंगे मुझे उनका नाम याद रहेगा। रूट 29 -1 whole divided by 2 रूट नोट 29 -1 -1 whole divided by 2 2 और माइनस होल इनटू रूट 29 +1 whole divided by 2. यही ना? Yes sir. Yes sir. Sir, I am getting the same व्हाट्स answer. योर नेम? अभय ना? अभय? Yes sir. चलो अभी देखते हैं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा सो वी हैव टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। सो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? 1/2, 1 हाँ by कि 2. नहीं? उसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, फिर -7 इक्वल टू 0। नाउ दैट इम्प्लाइज ये हो गया हमारा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 -7 इक्वल टू 0। So that implies y plus 1/2 whole square equal to +29/4, हाँ कि नहीं? So that implies y plus 1/2 equal to √29/2. ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या होगा कि दो, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। एक होगा आपका प्लस √29/2 -1/2 और दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा होगा y इक्वल टू -√29/2 और -1/2। बेटा हिमांशु तुमने आंसर तो एक का सही बताया, दूसरा तो गलत। तुमने ये बोलते ना माइनस कंप्लीट में होगा, ये नहीं होगा, माइनस इसमें होगा, ये वाला तो नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो माय मिस्टेक। ओके, दोनों का बिल्कुल दोनों आंसर सही है, बिल्कुल भी सही है। ओके,
माइनस अगर ब्रैकेट ले लेंगे तो √29 + 1/2। ओके, सो अब तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम क्वेश्चंस कर पाओगे इस तरह क्वेश्चंस? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अभी तक जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सब में ये जो जहां पर पावर 2 है ना, उसका कोफिशिएंट 1 ही है। अब अगर 1 के बदले कुछ और होगा तो उसे कैसे करेंगे अब हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो आगे चलेंगे, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपका कि ax² + bx + c, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अच्छा, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर x का वैल्यूज निकालना है जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, हमने आंसर लिख दिया कि -b ± √b² - 4ac/2 है। लेकिन ये आंसर आया कैसे, सॉल्व कैसे करें, इससे हम सॉल्व ढंग से करते हैं। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर एक्सिस का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है ही नहीं, वो क्या है, a है। तो इसको 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन हम a में डिवाइड कर लेंगे। तो लिखेंगे हम पर डिवाइड बाय a बोथ साइड्स, सो विल गेट x² + bx/a + c/a = 0/a, एंड 0/something = 0 ही होता है, = 0 आ गया। अब बन गया इक्वेशन हमारा x² + bx/a + c/a = 0। अब इसे सॉल्व करते हैं बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x² + 2 × x इंटू, अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि bx/a मिले, मल्टीप्लाई करूंगा b/2a। ध्यान से देखो 2 2 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद मुझे मिल रहा है bx/a मिल रहा है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है ऑलरेडी। उसके बाद क्या करूंगा, to make this a perfect square we have to add b/2a का whole square and also we have to subtract b/2a का whole square plus c/a = 0. Now that implies this will become a perfect square, so this will be equal to x, so x plus b/2a का whole square equal to क्या बनेगा, इस तरफ ये जो b/2a का whole square माइनस में उसको इस तरफ ले आओ, ये बनेगा b² - c/a। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा 4a²। 4a² होने से यहाँ पर आ जाएगा b², यहाँ आ जाएगा -4ac। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इफ यू टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स विल गेट x + b/2a = ± b² - 4ac का रूट ओवर, और नीचे क्या बनेगा, 2a बनेगा। अब दैट इम्प्लाइज x, हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, x = -b/2a ± b² - 4ac रूट ओवर बाय 2a। अगर इसको ढंग से लिखेंगे, ओके, तो ये बनेगा -b ± b² - 4ac रूट ओवर डिवाइडेड 2a। So as you can see that here the answer is written x = -b ± रूट ओवर b² - 4ac by 2a। अब ये फॉर्मूला था और उस फॉर्मूला हमने डिराइव किया बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए अब मुझे आपको पढ़ाना था हाउ टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ा था हाउ टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, देन आपको क्या, आप बस अभी फॉर्मूला को याद रखते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें फॉर्मूला को डिराइव करना है। अगर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे देन हमें उसे अपने मरते दम तक याद रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² + bx + c = 0, तो उसके दो मतलब कि आंसर निकलेंगे -b ± रूट ओवर b² - 4ac by 2a। अब यहाँ पर और एक बात क्या पता चला हमें, अगर हमारा x² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन हम उसे डिवाइड कर देंगे ताकि हमें x का जो कोएफिशिएंट हमें 1 मिल जाए। 1 मिलने के बाद देन इजीली यू कैन मेक दिस ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे चलते फिर हम लोग, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, x = -b ± b² - 4ac रूट ओवर बाय 2a। तो अभी काम करते हैं फिर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है कि 11n² - 9n = 1। तो हमें इसको कंपेयर करना है टू ax, जो हमारा इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करो, तो ये होगा हमारा 11n² - 9n - 1 = 0। इफ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, यहाँ x के बदले n है, ठीक है, चलो x के बदले n है। अच्छा, और क्या है कि a = क्या हमारा है 11, b = क्या है
-9, c इक्वल टू है -9. अब देन इजीली यू कैन फाइंड द आंसर्स फॉर x. x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. आपको करना क्या है, आपको बस ये जो वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. क्लियर बेटा, कोई डाउट है इसमें? नो सर. ठीक है, एक काम करो, अभी इसे आप सॉल्व करो. इक्वेशन क्या है, 1/2 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 0. चलो जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या होगा इसका. यू हैव ओनली 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सर -4 प्लस माइनस रूट -4 प्लस माइनस 4 रूट 1 प्लस 5/2 रूट मैंने सर 1 प्लस 5/2 रो होल रूट सर 4 into 1 प्लस 5/2 सर होल रूट. अच्छा -4 ये सर 4 भी इंटू होगा. अच्छा मतलब कि माइनस -4 सर 4 को कॉमन ले लेते हैं फिर. अच्छा ठीक है, हाँ वेरी गुड. सर माइनस नहीं सिर्फ 4. अच्छा +4, हाँ ठीक है. 1 प्लस माइनस रूट 7/2 ये है ना. इतना डिफिकल्ट आंसर मत बताओ, ठीक है ना. देखो मैं इजी बता देता हूँ. अच्छा किसी को और कुछ आंसर निकल रहा है? चलो सॉल्व करते हैं फिर. तो अभय ने बता दिया आंसर, कुछ बताया? 4 प्लस माइनस 3 सर 4 प्लस माइनस 3 बाय होल 4 बाय 1/4. आप लोग मतलब क्या है ना, मतलब कि नाक को सीधा छूते नहीं आप लोग, मतलब उल्टा घुमा के छूते हो, ठीक है ना. चलो देखो फिर अभी, ठीक है. अच्छा इक्वेशन क्या है हमारा, 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 0. So to make the coefficient of x square equal to 1, so multiply by 8. Okay, multiply by 8. तो आंसर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 इंटू 5/2, आंसर क्या होगा -20 इक्वल टू 0. तो बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है. मतलब आंसर डायरेक्टली लिखो. तो x इक्वल टू -b -8 प्लस माइनस b स्क्वायर, b मतलब कि 8 का स्क्वायर कितना आएगा ये, कितना आएगा 64 देन b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस 4ac 4 into 1 80, हाँ कि नहीं, बाय 2 ठीक है. तो आंसर का -8 प्लस माइनस 80 प्लस 60 कितना 144 रूट ओवर बाय 2 और 144 रूट ओवर कितना 12 आएगा. सो -8 प्लस माइनस 12 बाय 2. डायरेक्टली आंसर था. ये क्या आंसर आता मुझे पता नहीं चल रहा है. लो बेटा, इसका आंसर आपका -8 प्लस 12 कितना आ रहा है 4/2 2 आ रहा है. और दूसरा आंसर आ रहा है -8 माइनस 12 -20/2 -10. दो आंसर है, 2 और -10. तो आप लोगों ने ये क्या आंसर बताया मुझे? सॉरी सर वैल्यू गलत पुट कर दिया. हाँ दोनों का आंसर, सबका आंसर गलत है भाई. डायरेक्टली रियल आंसर 2 और -10 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है. एनी डाउट? हाँ डाउट कुछ है इसमें? देखो खाली अभय, सुमित एंड हिमांशु, ये तीनों मतलब इंटरेक्शन करो, और कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है सर. हाँ सर मेरा आंसर -2 और 10 आ रहा है. -2 और 10 आ रहा है? कैसे आ रहा है भाई, कैसे आ रहा है -2 10 आ रहा है? -12 -8 ये कैसे होगा, नहीं होगा. तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? -2 और 10. -2 और 10. एक काम करो, ठीक है, तो इसको यहाँ पटक दो, ठीक है ना. इक्वेशन अप्लाई करो. x इक्वल -2 का होल स्क्वायर क्या +4 4/8 और आपका आंसर गलत है. मेरा आंसर गलत है? तो मैंने कहाँ मिस्टेक किया? -8 -12 -20/2 -10. हाँ सर आपका करेक्ट है सर, आंसर करेक्ट है आपका. अरे मैं से प्रूफ करवा रहा हूँ ना, ठीक है. अच्छा 4/8 हुआ 1/2 -2 2 to 4 कहाँ पर बेटा हो रहा है तुम्हारा आंसर? तुम्हारा आंसर गलत है. तो जो आंसर था -2 और 10 वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है. तो फिर से चेक करो, तुम्हारा आंसर गलत है. सर b का वैल्यू 1 है. b का वैल्यू 1 है कैसे? सर वो लोग 8 मल्टीप्लाई नहीं किए सर, विदाउट मल्टीप्लाइंग 8 दे आर सेइंग. अच्छा तो मैं फिर से बताऊं, आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. लेकिन बेटा यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर में, ठीक है ना, अगर हम इसका जो कोएफिशिएंट इसे 1 बनाना है, ठीक है ना, 1 बना भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. तो हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया
दोनों तरफ, ठीक है। अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई ना भी करो तो भी आंसर यही आएगा, ट्राई करो, ठीक है ना, तो भी आंसर यही आएगा, बिल्कुल भी यही आएगा, कुछ और आएगा ही नहीं, ठीक है। शायद तुमने कहीं कहीं पे काकुस मिस्टेक किया होगा, हम लोग आगे चलते हैं, ओके आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये देखो क्वेश्चन देखो, सॉल्व x इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल माइनस 30 बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू माइनस 30, सो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू क्या है आपका 6 है एंड c इक्वल टू 30 है। तो डायरेक्टली आंसर निकाल देते हैं, x इक्वल टू माइनस b, माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4ac, माइनस 4 मतलब माइनस 120 रूट ओवर बाय 2a बाय 2। अब देखो 36 माइनस 120 ये जो है ना 36 माइनस 120 दिस विल बी अ नेगेटिव नो नंबर। रियल रूट सर। वेरी गुड, आंसर क्या होगा, और हमें कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर की मतलब कि नेगेटिव आएगा, सो नो रियल रूट, ओके नो रियल रूट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? सो x इक्वल टू, इसे हम रूट्स भी कहते हैं, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। नाउ दिस आल्सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2a, रूट ओवर कैपिटल D बाय 2a। तो व्हाट इज D? By 2a. D इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ लिखा गया है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। सो D इक्वल टू क्या होगा Yes, sir. आपका d स्क्वायर माइनस Discriminant. 4ac, D इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ओके क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके देन तो फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या दिया गया है कि 5 माइनस 4x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेसिकली इक्वेशन लिखा गया है 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a क्या है आपका 12 है, b इक्वल टू है माइनस 4, c इक्वल टू है 5। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या आपका माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 12, c इक्वल टू 5। तो माइनस नो रियल। वेरी गुड, 16 माइनस 240, तो आंसर कितना आ रहा है माइनस 224। सिंस इट्स अ नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर No का real root. स्क्वायर रूट कभी रियल आ ही नहीं सकता, सो नॉट No real root. No real roots. ओके क्लियर, No real root, sir. वेरी गुड, नो रियल रूट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब व्हाट्स द कंक्लूजन इज इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू नेगेटिव देन नो रियल रूट्स, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू पॉजिटिव तो क्या मिलेगा रियल रूट। Real roots. Real root. अगर डिस्क्रिमिनेंट डी 0 हो जाता है तो क्या मिलेगा बताओ, अगर डी 0 होता है तो 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। रियल एंड इक्वल रूट सर। वेरी गुड, एक ही किसने किसने कहा, हिमांशु ना, सर हिमांशु। वेरी गुड, आपको मिलेंगे रियल रूट्स मिलेंगे और रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, तो रियल And equal root. रिपीटेड रूट्स, ठीक है, रियल रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, ठीक है। हम आगे करने वाले हम लोग, ठीक है। चलो तो ये वो कुछ लिखा गया है, ठीक है, ये सब चीज हमें नहीं चाहिए कि हम ऑलरेडी क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, 12x प्लस 4 इसे सॉल्व करो क्विक। एक काम करो, मतलब सबको एक तरफ ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो, जल्दी से करो। सर नो रियल रूट्स निकल रहा है। हमने किया ना अभी, हाँ कि नहीं, थोड़ी देर पहले हमने किया अभी, इससे यही क्वेश्चन था ना, हाँ कि नहीं, मतलब इस तरह कुछ था शायद, देखते हैं फिर। नो सर, रियल रूट आएगा। अच्छा यस सर, विल गेट रियल रूट। आ रहा है, रूट 80, पहले चेक करो, रूट 20 का 80 हो माइनस 4 ac क्या आ रहा है, 20 का इक्वल टू 80 होगा। 4 into 4 ac 144। हाँ रियल रूट्स आ रहा है बेटा, रियल रूट्स आ रहा है, ठीक है। तो d का वैल्यू जो आ रहा है 80 आ रहा है, तो रूट d इक्वल टू 80 का रूट हो रहेगा, रियल रूट्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो 16 into 5 तो आ जाएगा आंसर 4 रूट 5। वेरी गुड, आंसर आएगा 4 रूट 5 आएगा। तो ट्राई कर लेना फिर, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a।
तो आंसर है आपका माइनस बी माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 4√5/2a 2 × 4। तो जो आ रहा है क्या आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर यही आएगा। क्लियर, आगे चले, किसी को डाउट है? 3 प्लस माइनस √8 बाई ठीक है, सॉल्व कर लेना। √5/2। हाँ ठीक है, देखो 4 पर क्या 4 हाँ सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5/8m² प्लस से -1/2 = 0। बताओ ए यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू है 5/8, बी क्या है आपका 1, सी इक्वल टू -1/2। अब बताओ एम का आंसर क्या निकलेगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। जस्ट क्या करना, आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। क्लियर, आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, दैट्स इट। और वैल्यू सर आपको दिया गया है -1 प्लस माइनस 1 - 4ac, माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 5/8 × 1/2 इसका होल √/2a 2 × 5/8। आप लोग इसे सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल जाएंगे, और यहाँ पर रियल रूट्स मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको रियल रूट्स ही मिलेंगे। क्लियर, Yes, देखो भाई, yes, जो लोग आंसर Yes, बता रहे हैं sir. मुझे उनका नाम याद रहेगा। ठीक है, और Yes, अगर sir, आप लोग हाँ आंसर बताओ, गलत भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, √2x² + x + √2 = 0। तो यहाँ पर a क्या निकलेगा हमारा √2, b = 1 एंड c = √2। तो इसे सॉल्व करो, x गुड क्या होगा -b -1 होगा। प्लस b। हाँ वेरी गुड, डी डिस्क्रिमिनेंट माइनस हो जाएगा। माइनस हो रहा है 1 हाँ वेरी गुड, माइनस तो हो रहा है, और क्या sir. No real root, sir. नो रियल रूट, वेरी No गुड real roots. वेरी गुड, नो Sir, आंसर नो this रियल is no रूट, real root, sir. वेरी गुड, क्योंकि Sir, ये no आंसर real क्या root, √2 हाँ। सो Yes, इसका sir, आंसर minus होगा है इसलिए। नो रियल रूट। रीजन क्या है, बिकॉज It is डिस्क्रिमिनेंट minus, sir. इज Sir, नेगेटिव। discriminant is तो negative. अब बस आपको क्या करना है, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट देख लिया कि नेगेटिव आ रहा है तो सीधा आंसर लिखना क्या है, नो रियल रूट मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो रियल रूट। Yes, sir. ठीक, चलो अच्छा, तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अच्छा, इफ यू सॉल्व फॉर द x so we'll get सर x 1 आई होगा। -b + -b² - 4ac √/2a। तो इसके By दो 2. रूट, इसके दो रूट्स निकल रहे हैं, हाँ कि नहीं, इसे हम रूट्स कहते हैं। ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, Fine, एक 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 रूट क्या है आपका, मान लो कि दो रूट है, एक रूट है अल्फा, दूसरा है बीटा। ठीक है ना, Beta. तो अल्फा को मान लो आप अल्फा इक्वल -b प्लस √/b² - 4ac √/2a एंड बीटा इक्वल टू -b -√/b² - 4ac/2a। अब दोनों को ऐड करो, दोनों रूट को ऐड कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा कर लो, तो क्या होगा, जब ऐड करोगे ध्यान से देखो, प्लस √/b² - 4ac एंड माइनस √/b² - 4ac, ये दोनों ऐड क्या हो जाएंगे, -2b/2a = -b/a। वेरी गुड, तो -b/2a और -b/2a आ जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -b/a। दैट मींस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू गेट टू रूट्स एंड इफ यू ऐड देम, इफ यू ऐड टू रूट्स विल गेट -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हमारा आएगा -b/a। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्या आपका, इफ यू मल्टीप्लाई टू रूट्स व्हाट विल हैपन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग का होमवर्क है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, किसको से मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर c/a आएगा। दिस इज योर होमवर्क, बिकॉज मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ कि आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ, वो आप लोग का काम है। ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. अब दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा, इफ अल्फा माइनस बीटा कर लेंगे तो ध्यान से क्या कैंसिल हो जाएगा, जो बी वाला पार्ट है ना वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, वो √d मतलब क्या है, 2√d/2a = √d/a। b² - 4ac का √/y बचेगा, a बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a बचेगा। ठीक है, आप लोग इस होमवर्क आप लोग से घर में ट्राई कर लेना, ये तीनों जो फॉर्मूलाज है इसे आप सॉल्व कर लेना। ये फॉर्मूलाज नहीं है, ये फॉर्मूलाज को हमने डिराइव किया हुआ है, हम सारा फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई आपको बता रहा है कि फॉर्मूलाज को याद रखो, वो गलत बता रहा है आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूलाज चाहे फिजिक्स हो चाहे वो मैथमेटिक्स कुछ भी हो, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। अगर डिराइव करोगे देन आप लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे इस चीज को। ठीक है,
आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया था इस चीज को, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या मिलेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों डिफरेंट रूट्स मिलेंगे हमें, हाँ कि नहीं? अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है x + b + c = 0 होता है तो हमें क्या मिलेगा? अगर डी को ग्रेटर देन 0 होता है हमें दोनों दो रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट रियल होंगे और अलग होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 होता है रूट्स आर इक्वल एंड कोइंसिडेंट, मतलब एक ही रूट होगा, ठीक है ना? अच्छा, अगर डी लेस देन 0 होता है तो सर रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट यहीं पे एंड करते हैं, बुक यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना याद रखो। क्लियर बेटा? एनी डाउट? आज हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? देन विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्या क्लास। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सर, c/a। हाँ, नो सर, क्या चीज बताओ, फिर से बताओ क्या चीज, क्या क्या क्या? जो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a आ जाएगा। हाँ वो तो आएगा ही आएगा। अरे बेटा वो हमने हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है ना। अब आपका काम है कि होमवर्क यही है कि आप लोगों से मल्टीप्लाई करना है और आंसर देखना है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है? हो गया सर। addition of 2 roots equal - b/a and multiplication 2 roots equal c/a and subtraction equal to √d/a। ये आपको याद रखना है और इससे होमवर्क आप लोग से घर में सॉल्व कर लेना, ठीक है? यस सर, ओके सर। ठीक है।